मटेरियल की कोई कमी नहीं है. Position yourself as not just a worker, because workers are a dime a dozen. आप एक worker ढूंढने, पत्थर उठाएं, वो टास्क करने वाले 50 लोग उसके नीचे से मिलेंगे. You have to position yourself as the problem solver for your client. अगर आप अपने आप को as a problem solver position करते हैं, तो client को ये impression नहीं पड़ेगा कि you are meeting the client to make a sale. क्लाइंट पे इंप्रेशन पड़ेगा कि आई हैव अ बिजनेस प्रॉब्लम एंड दिस इज द अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट हु कैन हेल्प मी सॉल्व दैट प्रॉब्लम, हु कैन हेल्प मी ग्रो माय बिजनेस, हु कैन हेल्प मी मेक मोर मनी, हु कैन हेल्प मी बिकम मोर सक्सेसफुल. दैट इज हाउ यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ. सो उसमें सेकेंडली जो चीज है, प्रोफेशनल एथिक्स. नाउ इफ यू स्टार्ट बिल्डिंग योर ब्रांड, you position yourself as an expert and you can't deliver, you miss deadlines, you provide work that is compromising in quality. and अक्सर लोग सोचते हैं ठीक है यार ये क्लाइंट चला गया तो फाइवर बढ़ा पड़ा है क्लाइंट से, और मिल जाएंगे, अपवर्क से और प्रोजेक्ट उठा लेंगे. बहाने बनाना, यार आज ये हो गया था, वो हो गया था, एंड ऐसा काम उठा लेना जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि आप वो अकॉम्प्लिश कर सकते हैं या नहीं, एंड देन लोगों को ढूंढना ऑन फेसबुक ग्रुप्स कि यार हमें ये काम कर दो इतने पैसों में सो दैट यू कैन मेक द कट. That's not the way to work. So you have to first and foremost position yourself as an authority, and after that you have to actually deliver. उतना कमिट करें जितना डिलीवर कर सके, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कमिट कर लें, दैट्स फाइन, जो कि आप उस प्रोसेस में सीख के जिस पे डिलीवर कर सके. बट always give the client realistic expectations and deliver on the promises you've made. So these two things, these will let you position yourself as an authority on the subject, engage, help. ऐसी फोरम्स पे जहाँ पे लोगों को अपने प्रॉब्लम्स के लिए फ्री हेल्प चाहिए, वहाँ जाके उन्हें फ्री हेल्प प्रोवाइड करें. वन ऑफ माई बिगेस्ट क्लाइंट्स जिसके थ्रू मुझे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बिजनेस मिला, मुझे वो क्लाइंट फेसबुक से मिली थी और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे अपना कुछ साइट का काम कराने के. मैंने उसे डिस्काउंट पे काम कर दिया. पहले तो मैंने उसे फ्री में हेल्प दी, देन उसे डिस्काउंट पे काम कर दिया. She later connected me with someone who needed a real estate website, and that was like a $5,000 to $10,000 project. But in that process, now I'm coming to the third point, building relationships. In that process, I didn't just serve the client. मैंने सिर्फ उस क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक वेबसाइट बना के उसे डिलीवर नहीं की, मैंने उससे रिलेशनशिप बिल्ड की. I identified an opportunity that the real estate management system that she uses, I can have her website integrate natively with that system, and I can have a CRM and marketing automation system built in the website that integrates with that system. She connected me with the vendor of that system जिसके through वो real estate management system उसने purchase किया था. I built a relationship with that vendor while developing that integration, and that vendor sold that real estate management system to around 10,000 other realtors. So with that integration that I built for one client through a relationship, I had a market open to me to serve the next 10,000 clients of that real estate solutions vendor. Zero marketing budget, absolutely zero marketing budget. मेरी कंपनी के वेबसाइट पे आप अभी भी जाएं तो कमिंग सून पेज है, because we are getting so much business through these relationships that we've developed that we don't need to market ourselves. We'd rather spend that time and effort onboarding the clients जिनकी हमारे पास long list है, waiting list है for onboarding them, rather than spending that time and effort on marketing. So now this also brings me to the subject of PAFLA. PAFLA stands for Pakistan Freelancers Association. This was formally founded this year, earlier in February, when it was formally registered in February when we got registered under the Societies Act. बट उससे पहले 2-3 साल से मैं और कुछ लाइक माइंडेड लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक सिंगल यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. डिफरेंट लोग कर रहे हैं एंड काफ़ी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, लेकिन लाइक पाशा इज़ देयर टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज एंड अदर यूनियंस होती हैं. यूनियंस एंड एसोसिएशंस में व्हेन यू यूनाइट, you can lobby with the government effectively, you can lobby with the stakeholders effectively, you can lobby with the regulators effectively. So हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया 2017 के एंड में with a few like-minded people. Fortunately मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री से कुछ ऐसे लोग मिल गए और कुछ फाइनेंस इंडस्ट्री को सर्व करने वाले ऐसे लोग मिल गए जिनके साथ मिलके we accomplished a few things जो पहले यहाँ पे बहुत बड़े hurdles थे. For example, direct remittances पाकिस्तान में मंगाना
एक इंडिविजुअल के लिए B2C पेमेंट्स मंगाना, इट वाज अ हैसल। $1000 से भी ऊपर आपकी अगर डायरेक्ट वायर ट्रांसफर आती थी तो आपका बैंक आपको तंग करना शुरू हो जाता था, जैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, जैसे आप फाइनेंशियल क्राइम्स कर रहे हो। वी along with working with other like-minded people and the government, we increased that from $1,000 to $3,000 to $5,000 to $10,000, then to $20,000 and then to $25,000 a month. इतने पैसे आप हर मंथ अगर मंगाते हैं as wire transfers, as remittances, आपको बैंक तंग नहीं करेगा। हमने बैंक्स को पुश किया कि फ्रीलांसर्स को अकाउंट खोलने में मसला होता है, आप फ्रीलांसर्स को इनवाइट करो कि आके हमारे पास अकाउंट खोलें। एंड विद दैट JS बैंक ने स्टार्ट किया, फैसल बैंक ने स्टार्ट किया, मीज़ान बैंक ने स्टार्ट किया, एंड नाउ प्रीटी मच एवरी बैंक इज वेलकमिंग फ्रीलांसर्स कि आओ हमारे पास अकाउंट खोलो, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने मिस आउट कर दिया तो दूसरे बैंक्स के पास से सब चले जाएंगे और ये सब पाकिस्तान में फॉरेक्स ला रहे हैं।